بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج کا دن ویسے میرے لیے تو بہت ہی زبردست آغاز رہا، کیونکہ آج اتنا زبردست موسم تھا یہاں۔ رات کو ایک بہت وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کھل کے بارش ہوئی ہے، اور شہریوں نے انجوائے کیا ہے کراچی میں خاص طور پہ، کیونکہ کراچی کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے، اور جب بارش کم ہوتی ہے یہاں پہ تو پھر جب کبھی بارش ہوتی ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کے ہوتی ہے، تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، شروع میں انجوائے کرتے ہیں، کچھ دن بعد تنگ آ جاتے ہیں، مگر اس وقت جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ بارش کے ساتھ ساتھ سردی بھی تھوڑی سی آئی ہے، اور یہ سردیوں کے دنوں میں تو ایٹ لیسٹ آنی ہی چاہیے۔ خیر جناب، کراچی کے علاوہ بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں اس وقت بہترین موسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنوری کا آج آخری دن ہے، اور یہ سردی کا ایک خاص وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب سردی اپنے شدت پہ ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان بھر میں الگ الگ جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ اس وقت موسم جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور ایسا موسم ہے کہ آپ موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ابھی شمالی علاقہ جات میں تو اس وقت آپ کو سارے پہاڑ ڈھکے ہوئے نظر آئیں گے، جتنے درخت ہیں ان کے رنگ سفید نظر آئیں گے، برف باری سے ایک خوبصورت منظر جو ہے وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، نلتر اور مالم جبہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ دنیا بھر سے اس وقت کوئی میرا خیال ہے 18 ممالک کی ٹیمز جو ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی برف سے متعلق جتنے کھیل ہیں وہاں پہ ان کھیلوں پہ وہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، جو پاکستان ایئر فورس کی سرپرستی میں یہ سارے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آئس ہاکی کا ابھی پچھلے دنوں میچ ہوا ہے، اور آئس ہاکی کے بارے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آئس ہاکی کا میچ جیت لیا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ آئس ہاکی کھیلی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہم دوسری ہاکی سے واقف ہیں جو زیادہ تر میچز ہارنے کے مختلف ریکارڈ بنا رہی ہے، مگر آئس ہاکی یہاں کھیلی گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاح جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں وہ اس قدر متاثر ہیں، بلکہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک فرانس کی ایک خاتون ٹورسٹ جو یہاں پہ آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے 6 مہینے کے لیے جو ان کا ویزا تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں یہاں 6 مہینے رکنا چاہتی ہوں، اور میں فرانس والوں کو اپنے ملک میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور میں کتنی خوبصورت جگہ پہ ہوں۔ سچ میں یہ ساری رپورٹس دیکھ کے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس فوراً چھٹی کروں یا چھٹی لے لوں اور میں چلا جاؤں کچھ دن کے لیے ٹریولنگ کے لیے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، مگر جب وقت ملے گا ضرور جاؤں گا۔ میری جو ہے نا یہ ایک لسٹ میں ہے کہ مجھے جانا ہے شمالی علاقہ جات جلد سے جلد جب جا سکوں، کیونکہ بہت سارے میرے دوست، میرے عزیز، میری فیلڈ کے لوگ وہ جب سوشل میڈیا پہ جب کبھی نظر پڑتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں پاکستان میں، اور میرا بھی جی للچا رہا تھا کہ یس میں کب جاؤں گا۔ خیر جناب، یہ تو بات ہم نے کی صرف آئس ہاکی کی۔ آئس ہاکی کے علاوہ اس وقت وہاں پہ اسکینگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے برف سے ریلیٹڈ جتنے کھیل ہیں وہ سارے کھیل جو ہیں یہاں پہ کھیلے جا رہے ہیں، اور جتنے سیاح جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک آئیڈیل پلیس ہے اس حوالے سے، اور بالکل سیکیور ہے۔ ہاں، کچھ سال پہلے تک سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے غیر ملکی جو سیاح ہیں وہ یہاں پہ مطلب سیاحت کے لیے نہیں آ پا رہے تھے، ایک واقعی ایشو تھا، مگر شکر الحمدللہ اس وقت جو ہے یہ ایشو بالکل سالو ہو چکا ہے، اور غیر ملکی سیاح جو ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں آ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں،
खूबसूरत मौसम, खूबसूरत वादियों और खूबसूरत मनाज़िर के बीच में अभी सिर्फ पिछले साल में लाखों जो पाकिस्तानी सयाह जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं। पाकिस्तानी मतलब जितने भी कोई छुट्टी ईद उल फितर पे शायद 25 लाख के करीब जो है ना वो लोग वो सिर्फ शुमाली इलाका जात का उन्होंने रुख किया था। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने सियाहत की तरफ जो है ना अपना रुख किया। पता है सियाहत के हवाले से बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो जिनकी जो इकॉनमी है वो इनके सियाहत पे डिपेंड करती है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी का जो असल वो जो रीढ़ की हड्डी है वो सियाहत है। और हालांकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें भी तकरीबन 10% जो उनकी आमदन है ना मुल्क की वो इसकी सियाहत के ऊपर चलती है। तो सियाहत एक बहुत बड़ा एक ऐसा आपके लिए एक सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, स्पेशली आप ये देखें कि सियाहत के हवाले से या तो हमारे पास कुछ हो ना तो फिर भी है, हमारे पास देखें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया है कि अगर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे समंदर है तो वहाँ सहरा नहीं है, सहरा है वहाँ पहाड़ नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान को सोचें, यहाँ एक एक चीज़ आपको मिलती है और मगर हम वो उस तरह जो है इतनी राह हमवार नहीं कर पा रहे थे जो कि इस हुकूमत में और मतलब इस दफ़ा हमें ये सारा कुछ देख के बड़ा एक हौसला हुआ है कि यस हम दोबारा से जो है अपनी सियाहत को बहाल कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये वादी नलतर और मालम जुब्बा में ये जो मुकाबले हुए हैं तो मेरा हमारे पास पैकेज रेडी है। तो जी ओके, एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए चल के पहले वो देखते हैं कि वहाँ पे लोग किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी दोस्तों, अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि इस वक्त शुमाली इलाका जात में लोग किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यकीनन हमें भी बहुत जल्द सबको वहाँ का रुख करना है। इस वक्त तो हमें फ़ौरन जो रुख करना है वो ब्रेक की तरफ करना है। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज हम बात ही सिर्फ सियाहत के हवाले से करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सियाहत के हवाले से, पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से कि इतना खूबसूरत मुल्क है। सबसे पहले तो हमें ख़ुद वक्त निकालना है और जब हमें वक्त मिलता है तो हमें मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करने की बजाय अपने मुल्क की खूबसूरत जगहों को जाके देखना और एक्सप्लोर करना है। ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है पाकिस्तानी होने के नाते। और ख़ास तौर पे मतलब हम लोगों को जब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह से नवाजा है तो कम से कम हमने उसे देखा तो होना चाहिए। तो सियाहत के हवाले से एक तो ये, दूसरा जब गैर मुल्की वो पाकिस्तान की अहमियत को जानते हुए जब यहाँ पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते हैं, है ना। ये भी एक सोचने की बात है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे पहले मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली है भी उन्हीं इलाकों की जानिब उन्हीं उसी इलाके से ही है। तो असल ख़ूबसूरती में रहे भी हैं, पले बड़े भी हैं, जो मुल्क की जो हमारी ख़ूबसूरती है। तो ज़रा इनसे जो बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब जो कि तजियाकार भी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक? कैसा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। मैं बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास तौर पे मैं अब तक का जो कोर इशू को हमेशा जो पाकिस्तान की नीड है, स्पेशली मैं लास्ट टाइम लाइन ऑफ कंट्रोल का जहाँ पे इंडियन फायरिंग हो रही थी, साहिवाल का वाक़या हुआ, तो मैं समझता हूँ कि रेटिंग पे नहीं बल्कि राइट्स की बात करता है अब तक चैनल। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ व्यूअर्स की तरफ से और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से। बिल्कुल ऐसे सर, ये वाकई रेटिंग वाला जो है मामला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं या जब लोग जब दूसरे शोज़ वगैरह पे के जो होस्ट वगैरह जब मुझे मिलते हैं, जब सबसे है तो वो रेटिंग का एक उनके चैनल की तरफ से एक घंटी होती है सर पे जो उनके लटक रही होती है। यहाँ पे ऐसी मुझे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, और ये वाकई ये इसका क्रेडिट जो है वो अब तक की जो आला कामयानी को जाता है। 100% जाता है सर। इनका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम। फरहा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉलम निगारी करती हैं और तजिया कार भी हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़हीमा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने कभी पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों के बारे में लिखा? बहुत ज़्यादा टूरिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा, प्रमोट करने के लिए लोगों के लिए कि हम निकलें, देखें, एक्सप्लोर करें कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। हाँ एंड आई लव इट। इतना खूबसूरत है कि बल्कि अगर आप एक दफ़ा चले जाते हैं ना तो आई एम मच श्योर कि आप बार बार जाएंगे फिर। हाँ अच्छा, बार बार तो जाएंगे, मगर वो तो बार बार एक ही जगह पे भी हम जा सकते हैं, इतनी खूबसूरती है। मगर अलग अलग हर जगह पे, हर सेक्टर में इतनी places हैं हमारे खूबसूरती है, पास, इतनी प्लेसेस हैं कि आपको वापस घूम के जाने के लिए कई साल लग जाएं। Really? मगर हमें पता होना चाहिए क्या है ना। जिस तरह अब समंदर के हवाले से देखें हम लोग अगर, तो यहाँ पे इतना समंदर लगता है बलूचिस्तान में, सिंध में इतनी प्लेसेस हैं, इतनी खूबसूरत जगह। और सर ये दुबई जैसे मुल्क या थाईलैंड जैसे मुल्क जो हैं वो सिर्फ सियाहत पे, इन समंदर और मौसम पे सब कमा रहे हैं। और हम लोग जो है वो शायद सर क्या वजह है, हम लोग जो टूरिस्ट है उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते, या हम लोग जो है वो अभी तक जो है वो उसे वो अवेयर नहीं कर सके कि हमारे पास ये ख़जाने मौजूद हैं, आओ और आके देखो। असल में सर मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, अपने अपने सेक्टर्स होते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जैसे टूरिज़म का एक सेक्टर है, तो माजरत के साथ कि वो ऑपरेशनली सही अपने आप को या अपने इदारे को हाईलाइट नहीं कर रहा है। मिनिस्टर्स भी हैं, सैलरीज भी जाती हैं, स्टाफ भी है, लेकिन उनका जो बेसिकली काम है ना, तो वो इस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो ये हमेशा से रहा है ये डिपार्टमेंट? सर ये हमेशा से रहा है, मिनिस्ट्रीज़ रही हैं इसकी, मतलब सेक्रेटरीज़ रहे हैं, इसका पूरा स्टाफ है, इसके पूरे मतलब एक सिस्टमाइज है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो ऑपरेशनली मतलब फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये समझता हूँ मैं कि ये एक गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है। और मैं बताऊँ कि सर पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो बेस करते हैं उनकी इकानमी टूरिस्ट पे, जिसमें सिंगापुर है, बैंकॉक है, आप कई एग्जाम्पल्स हैं, मलेशिया है, इवन जो रशियन की स्टेट्स हैं, तो उन्होंने बड़ा डेवलप किया है इसको बड़ा। उन्होंने कहा जी बेसिक क्या है जी, टूरिज्म। आजकल बाकू का जिक्र जो बाकू का देखे ना, मतलब ये है कि आप कितने डेज में उसने इतना उसका नाम आया है। तो आप यूएई को ले लें, वहाँ का बड़ा जो है वो आपका एक हब है, आप यूँ समझ सकते हैं कि टूरिस्ट का। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, हमारी हुकूमतों ने इसमें तवज्जो नहीं दी। लोग तो बहुत इंटरेस्टेड है, और एक बड़ा इसका इशू ये है कि हम जिस तरह के शहरों में आजकल आबादी का बहुत प्रेशर है, इसकी बेसिकली वजह ये है कि आपने उन एरियाज़ को, नादरन एरियाज़ को डेवलप नहीं किया। अगर वो डेवलप होते तो कम अज़ कम आप शहरों में इस तरह के प्रेशर्स ना होते, क्योंकि लोग मूव करते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो ये सेक्टर ऐसा है कि इस पर बहुत ज़रूरत है काम करने की। और इकानमी के तौर पर मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल है कि कई ममालिक जो है वो बेस्ड ही आपके टूरिस्ट पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत सबसे ये तो देखें कि जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए थे तो वो वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जब सियाह जो हैं वो जब आते हैं वहाँ पे तो उन्हें किसी न किसी सर्विसेज से उन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ था। किसी कोई होटलिंग में है, कोई गाइड है, कोई कुछ है, कुछ वैसे वहाँ के कल्चर की चीज़ें बेचते हैं। जब लोग ही नहीं आएंगे तो फिर वो तो उन्होंने तो शहरों की तरफ मूव किया। अच्छा, एक वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा करते हैं बात इस पर। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آج ہم بات کر رہے ہیں خوبصورت پاکستان کے بارے میں. آج بات کر رہے ہیں سیاحت کے شعبے کے حوالے سے کہ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں سیاحت کو فروغ ملے تو پاکستان اس سے کتنی ترقی کر سکتا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع, سیاحت. سردار ذوالفقار صاحب سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, میں چاہتا ہوں بات کو کنٹینیو کیا جائے, پھر آگے فرح ناز صاحبہ کی طرف بڑھے. اچھا, تو وہ جو گاؤں دیہات میں مطلب یہ جتنے بھی سیاحتی جگہیں ہیں وہاں پہ جتنے لوگ مقیم ہیں وہ شہروں کا انہوں نے رخ کر لیا, کیونکہ وہاں پہ جتنے ٹورسٹ تھے ان کا آنا کم ہو گیا. ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ مشکل سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ آپ کو ہوٹل یا کوئی نظر آتا تھا کہ آپ کو رہنے کے لیے, باقی سارے بند ہو چکے تھے, چھوڑ چکے تھے, کیونکہ وہاں جاتا ہی کوئی نہیں تھا. اصل میں سر میں ایک چیز عرض کروں کہ لوگ وہاں پہ روزی روٹی کے لیے موو کرتے ہیں شہروں میں, خوشی سے کوئی نہیں آتا ہے. بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی اگر میں سیلری کا ایک لوور طبقے کا کہوں, اگر کسی کو 40,000 شہر میں ملتا ہے اور 10,000 روپیہ گاؤں میں ملتا ہے تو 10 کو پرائورٹی دے گا. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے, کیونکہ لوگوں کی موومنٹ بیسکلی ہیلتھ کا ایشوز ہے, روزگار کے ایشو, اور بیسکلی روزگار کا ایشو ہے. اب اس میں اگر جیسے ٹورزم والے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہارڈس فائنینس پہ دے دیں, لون پہ دے دیں, مطلب ایک اس کو بنا کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شہروں سے برڈن کم ہوگا. لوگ زیادہ تر موو کرتے ہیں شہروں کی طرف, وہ شہروں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, کراچی میں سب سے بڑا ایشو پانی کا آ رہا ہے, جہاں ایک فلور کا گھر تھا وہاں پہ 16 منزلہ بن چکی ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے, اور آکوپائی ہیں ساری, ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہیں. تو آپ کی جو پانی کا اور بجلی کا اور وہ ایز اٹ از ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے. تو وہ جو برڈن آ رہا ہے شہروں پہ, اور جس کی وجہ سے خاصے مسائل ہیں. آپ دیکھیں نا سر, آپ بیسکلی جو کرائم کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو زیادہ تر جو لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اگر روٹی نہیں ملے گی تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کریں گے. اچھا, اور اس کے ساتھ ایک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ وہ لوگ جو اپنی فیملیز کے علاوہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں نا, انہیں وہ ڈرتے نہیں. اگر جو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے اسے ایک ڈر ہوتا ہے کہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, میرے گھر میں میری ماں بہن باپ بھائی وہ سارے ہیں, تو ایک بے عزتی ہوگی محلے میں ہوگی. یہ وہ ادھر اکیلا آدمی وہاں سے موو کرے کہیں اور چلا گیا, وہ اسے کوئی ٹینشن بھی نہیں. تو اس لیے بھی جو ہے وہ واقع کرائم میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوتا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ پرائورٹی بیس پہ میں کہتا ہوں کہ جو اکانومی ابھی ہر آدمی کے ایشوز ہیں, چونکہ وہ بیس کرتا ہے جی اور ڈالر مہنگا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے الٹرنیٹ گورنمنٹ کو پالیسیز دینی چاہیے, اس کے الٹرنیٹ لوگوں کو لے کے چلے. ضروری نہیں ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو ہنر دیں, ان کو مینوفیکچرنگ کا ایک بیس دیں, آپ ان کو مطلب جو کرائسز ہیں, انرجی کرائسز ہیں, اس پہ کنٹرول کریں تو بہت لیول ہو جائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, چونکہ میرا ایک نادرن ایریا سے میرا تعلق ہے, کشمیر سے, تو اگر آج بھی مجھے وہاں پہ یہاں کی بنسبت 25% بھی فیسلٹیز ہوں تو میں موو کر جاؤں گا وہاں پہ, چونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نیچرل ایک آپ کی ہوا, پانی, بجلی, مطلب ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ میں پرائورٹی کروں گا کہ میں موو کر جاؤں واپس اپنے گاؤں کی طرف, اپنے نادرن ایریاز کی طرف. بالکل حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. یہ بہت سارے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ انہیں اگر جو سہولتیں اور جو ایک آمدن اس وقت جو بڑے شہروں میں ہے, انہیں اگر وہ اس سے آدھی یا آدھے سے کم بھی انہیں ملے اپنی جگہ پہ, تو واپس چلے جائیں گے. کیونکہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ جہاں پلے بڑے ہیں, ان گلیوں میں ان لوگوں میں دوبارہ آپ کیوں نہیں جانا چاہیں گے. اور ہیلتھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے فہیم, وہاں پر ڈیزیز نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, لوگوں کو اچھی نیند سوتے ہیں, اپنی نیند سوتے ہیں, پیور انگریڈ, یار بہت اچھا. الماس سے کہ اگر آپ گلگت ہنزا چلے جائیں تو وہاں کے ڈرائی فروٹس, وہاں کے جو فروٹس ہیں, زمین, یہاں پہ جو ہم اسٹرابریز لے رہے ہیں وہاں پہ آپ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اتنا فرق ہوتا ہے. اور فریش اینڈ فریش, یو نو, اینڈ پانی, منرل واٹر, مطلب اتنی خوبصورت جگہ ہے ہمارے پاس. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان کا تو مسئلہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہے, یہاں پہ بیڈ پالیٹکس نے ہر چیز کو ڈسٹرائے کیا ہوا ہے.
टूरिज़्म से तो हम 50% अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। अगर देखें जब टूरिस्ट आने शुरू होते हैं तो आपके बीचेस बनने शुरू हो जाते हैं, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, डॉलर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी बाइंग लोग आते हैं, लोगों को रोजगार ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। कपड़े हो गए, जूते हो गए, बैग्स हो गए, हमारी जो ट्रेडिशनल कितनी चीज़ें हैं हमारी, वो आगे जाना शुरू हो जाता है। हमारा फूड इतना रिच फूड है हमारा, उसकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप होती है, यानी मच इतनी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कभी सिक्योरिटी का हमारे पास मसला बना दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा जितना कर दिया जाता है। अगर आप एक जगह चले जाएंगे ना, आई रिमेंबर जब हम बचपन में सवात जाते थे ना, तो बड़ा ही सादा सा सवात था वहाँ पर, कोई ये सिक्योरिटी नहीं थी, कोई खौफ नहीं होता था, वो दरिया बह रहा है, ये हो रहा है, सारी चीज़ें। अब सोचो ना, इतने ज़माने के बाद कितनी उसमें चेंजिंग आना चाहिए और कितना बन जाना चाहिए, मरी को कितना बन जाना चाहिए। तो आई मस्ट से कि थैंक यू सो मच कि इमरान खान को खुद शौक है, हमारे जो वज़ीर आज़म एक्सप्लोर करते रहें, तो शायद आके वो प्रमोट करें इस चीज़ को। और क्योंकि वो एक पढ़े लिखे, प्रैक्टिकली पढ़े लिखे वज़ीर आज़म है, और उनको पता है कि टूरिज़्म पूरी दुनिया में कितना कमा कर देता है आपको, कितना आप इसे डेवलप कर सकते हैं। तो काम तो पहले से भी वो कर रहे थे, लेकिन आई मस्ट से कि अब इस दफ़ा अगर अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, एंड कहते हैं ना कि वो एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग हो उसकी, तो कितना अच्छा हो, ज़बरदस्त हो इस किस्म की चीज़ें, हमें और आपको शौक़ हो। हम थाईलैंड जाने का सोचते रहते हैं, हम सिंगापुर को बड़ा अच्छा कहते हैं, हम दुबई को बड़ा अच्छा कहते हैं, यार हमारे पास भी बड़ी खूबसूरत जगह हैं। आज सिर्फ कराची में अगर जितने भी सियाह हैं उनके लिए एक यहाँ पे रास्ता खोल दिया जाए और दिखा दिया जाए लोगों को कि इस वक्त आज 31 जनवरी को यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ये है, और यहाँ पे ये हमारे पास समंदर है, तो यहाँ लाइनें ना लग जाए ना गोरों की। तो फिर हमारा हॉक्स पे बीच है, कितना खूबसूरत है, वहाँ पे जो छोटे छोटे हैं बनाए हुए हैं उन्होंने, बहुत खूबसूरत चीज़ें, और आई थिंक सिक्योरिटी नहीं है। मरी, हमारा सवाद, ये हुंजा, ये सब इतने खूबसूरत जा रहे हैं बर्फ़बारी की वजह से कि अमेजिंग। लोग परेशान हैं, बाहर के लोग परेशान हैं कि इतना खूबसूरत पाकिस्तान, इतना हसीन, मतलब तो क्यों नहीं आए, क्यों ना लोग कमाएं यहाँ पर, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज़ बने, क्यों नहीं हो ऐसा? बिल्कुल ऐसा है सर। मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ एक जो जिस चीज़ का एक सिक्योरिटी इशू है, गवर्नमेंट को पहले तो सिक्योरिटी देनी चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। जैसे मैडम ने हर सियाह के साथ तो एक गन ऐसा नहीं है सर। अच्छा, मुझे लगता है जब रोजगार बढ़ता है ना, तो सिक्योरिटी के इश्यूज भी कम हो जाते हैं। जब लोग कमाने लगते हैं उन चीजों से, उनके पास जब पैसे आने लगते हैं उन चीजों से, तो वो क्यों बॉदर करेंगे, लोगों को क्यों परेशान करेंगे? एक आप ये हरगिज ऐसा नहीं है कि वो बॉदर करेंगे। आपको इंटरनेशनली इस वक्त आपके मुल्क के खिलाफ साजिशें की गई हैं, सी पैक के हवाले से की गई हैं। आप ये मत एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात तो जितनी मोहब्बत नादरन एरिया के लोग इस देश से करते हैं कि शायद शहरों में मेहमान नवाज, उसके अलावा, और दूसरी ये है कि उनकी मोहब्बत का ये अलमिया है कि वो सीज फायर लाइन पे भी खड़े होकर नारे लगाते हैं, झंडा लहराते हैं। मैं आपको एक इसकी बिल्कुल ऐसा तो उनसे नहीं है। आपको बैरूनी लोग जो नहीं चाह रहे हैं कि आपका टूरिज्म डेवलप हो, आपका सिस्टमाइज हो जाए, तो ये चीज़ नहीं चाह रहे, तो उनको फोकस करें। आप हुंजा गिलगित चले जाएंगे ना, वहाँ के लोग अपने घर आपको दे देते हैं रहने के लिए। आपको पता है, आपको खाने बना के देते हैं, मतलब इतनी मेहमान नवाजी है, पीस एंड बिल्कुल कि निकलने को दिल ही ना करे आपका। अभी वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं लोगों के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से और इनकी मेहमान नवाजी के बारे में। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज सियाहत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब और हमारे साथ मौजूद हैं फरहान नाज साहिबा। अच्छा सरदार साहब, बात हो रही थी लोगों के रवैयों के हवाले से, तो मैं पिछले साल में यूरोप के एक मुल्क जाने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, कोई 2-3 दफ़ा। तो अब एक दफ़ा जब मैं गया तो वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, -15 टेम्परेचर, इस तरह टेम्परेचर होता है। तो उस वक्त वहाँ 23-24 इतना टेम्परेचर था और वो लोग इस कदर खुश थे जिस तरह वो सब जन्नत में, कि मतलब उन्हें ज़िंदगी में मतलब पूरे साल में पहली दफ़ा उन्हें
وہ ایک لیئر پہننے کو کپڑے کی جو وہ ملی تھی, ورنہ تو وہ اتنی موٹی لیئر میں رہتے تھے. تو خیر جب وہ دھوپ پہ نکلی ہوئی تھی تو بڑے خوش. جب میں صرف 3 دن کے لیے وہاں رکا تھا کیونکہ واپس مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے, تو اب ایئرپورٹ پہ وہ جو امیگریشن والے وہ جو سارے عملے کے جو لوگ تھے, انہوں نے ایسے دیکھا اور ایسے میری شکل دیکھی, انہوں نے کہا آپ صرف 3 دن رک کے جا رہے ہیں اتنے خوبصورت ملک میں؟ میں نے کہا ہاں بس کام ہے پیچھے. تو اتنے خوبصورت موسم میں صرف 3 دن آپ رہ کے جا رہے ہیں؟ میں کہ ہاں میں انشاءاللہ جلدی آؤں گا. تو یہ موسم چلا گیا ہوگا یہ والا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ دس از انکریجمنٹ, وہ آپ کو انکریج بھی کر رہا ہے, یعنی آپ سے پوچھ تو رہا ہے بٹ آپ کو ٹمپٹیشن بھی دے رہا ہے کہ آپ اسٹے کریں ایک ٹورزم کو. اور جب انٹر ہوا میں تو اس وقت اس شہری نے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جو ان کے عملے کا ایک جو خاتون تھی ان کی, تو آ کے وہ اسمائل کے ساتھ میں ویلکم کر رہی ہوں, ویلکم آپ آئیے, آپ نے مطلب کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو اسٹے ہے آپ کا اسے انجوائے کیجیے. تو وہ مطلب یہ ایک ویلکمنگ ان کے بیہیویئرز یہ بڑے میٹر کرتے ہیں لوگوں کو. ہاں مطلب ایک شہری کو پتہ ہے, ایک شہری کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ٹورسٹ وہ کتنا امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. اچھا ٹورسٹ اپنے ساتھ بہت چیزیں لے کر آ رہے ہیں, بزنس لے کر آ رہے ہیں, آپ کو ایکسپلور کر رہا ہے, پھر وہ پوری دنیا کو جا کر بتائے گا بھی, آپ کے ملک آپ کے بارے میں بتائے گا, بیہیویئر کے بارے میں بتائے گا. تو یہ ٹورزم تو ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, میں کہتی ہوں بہت زیادہ. سر ہمارے یہاں بھی تو یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, بڑے ایک اچھے ان کے اپنے جیسے بھی وقفے سے پہلے بات کرتے ہیں, اپنے گھروں میں جو ہے وہ کہتے ہیں ادھر رکیں آپ, ہوٹل نہیں مل رہا. تو سر شاید تھے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ ایک سسٹم تھا جو آج کل کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. آپ کے رولرز اور شہروں میں ڈفرینس آ رہا ہے, مطلب وہ کچھ کریٹ ہم کر رہے ہیں اور کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک مطلب. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, تو وہاں کے لوگ جسٹ ایک لرننگ کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز سر آپ نے کہی کہ جیسے وہاں آپ گئے وہ آپ کو بڑا وارم ویلکم کا, ہمارے یہاں تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کرپشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اگر کسی کو کہیں سے رشوت نہیں ملتی ہے تو اس کی اسمائل کے پیچھے ایک مطلب نیڈ ہوگی. میں نے جو ہم نے نوٹ کیا ہے, جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی یہ مجھے ٹپس دے کے جائیں, جہاں ہمارا کلچر میں نے دیکھا, ٹھیک ہے, میکسیمم اس کی کوشش ہوگی. ابھی جو لوگ چائنیز جو لوگ آتے ہیں ان سے hمارے لوگ اتنے کوئی سیٹسفائی نہیں ہے, خاص طور پہ ہوٹلنگ کے لوگ بولے یار یہ کچھ نہیں دیتے ہیں. اچھا ٹپ نہیں دے گیا, چائنیز نے کہا جی ہمارا یہ کچھ ٹپس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں نے ایگزامپل دیکھا ہے, چائنیز کافی آئے ہمارے پاس تو ہم موو کرتے ہیں اس میں. تو میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جو اسمائل ہے, ہمیں مذہبی طور پہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نام ہم وہ کرتے ہیں کہ اسمائلس کے آپ کو کیا ریٹرنز ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے آپ کے لیے, گاڈس کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے جو آپ کو نیکیاں دی گئی ہیں. ایک تو پہلا یہ ہے اس کا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے ملک میں ویلکم کہتے ہو, اس کے بعد وہ موو کرے گا اور وہ پورے, میں کہتا ہوں کہ پورے ایک سسٹم کے ساتھ آتے ہیں. جو بھی آئے گا ٹورسٹ پہ آئے گا تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کے مائنڈ میں کب ہوتا ہے کہ میرا ایک بجٹ بنا کے آتا ہے اور وہ اسپینڈ کرتا ہے جس اس میں کرے. سر 2-3 ایشوز ہیں جس کو گورنمنٹ کو بڑے اس میں مطلب فوکس ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت قسم کے 4 موسم دیے ہوئے, ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو ایشوز ہیں ان پہ بات کر دیں. کالر میرے سے کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. پھر یہ کیا کیا ایشوز ہیں اس وقت ٹورزم کے حوالے سے, ٹورسٹ کو جو پیش آتے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. فہیم بھائی, لیاقت لاہور سے. لیاقت صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں الحمدللہ فہیم بھائی, ماشاءاللہ بالکل بہترین فرسٹ کلاس. اور اپنے مہمانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. رات سے ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے, لاہور کا موسم بہت پیارا اور بڑا سرد ہو گیا ہے, سارے درخت دھل گئے. اور دوسری بات آپ کا موضوع بہت اچھے, صحت. اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لاہور کی جو صورت حال ہے اس وقت, اپنے سیر و تفریح کے لیے جو مقامات ہیں ماشاءاللہ, ان میں جو سیر فہرست ہے وہ جناب اقبال پارک مینار پاکستان کے قریب. اور پہلے اگر ہم موازنہ کریں, نئی حکومت آنے کے بعد ماشاءاللہ کافی چینج آئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں لاہور کے اندر. کیونکہ لاہور آئی بھی مجھے آپ کو پتا ہے 2-3 سال میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. تو مختصر یہ کہ صحت میں ماشاءاللہ بڑی تبدیلی آئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اب لوگ باہر نکلنے لگے, جس میں فارن کنٹری سے بھی لوگ آنے لگے. میں گائے بگائے خود بھی جا کر گھومتا رہتا ہوں, چیک کرتا رہتا ہوں, جس میں ریس کورس گراؤنڈ ہے, اس کے علاوہ جناب پارک ہے. تو یہ جگہیں ایسی ہے جہاں پر لوگوں کی آمد آنا شروع ہو گئی, جس میں گورنر ہاؤس بھی
जो इस हुकूमत ने भी माशाल्लाह खोल दिया है। जी, लाहौर में तो वैसे ही बहुत सारी जगह हैं, बादशाही मस्जिद, शाही किला, जी ठीक है, नूरजहां का मकबरा, कला माशाल्लाह जो हमारा कला है माशाल्लाह वो मैं देखता हूँ, आप यकीन जानिए कि खास तौर पे स्कूलों के, कॉलेजों के लड़के लड़कियां माशाल्लाह सब आते हैं और फॉरेनर्स भी अब माशाल्लाह आ रहे हैं, मतलब बहुत तब्दीली आई, ये हमें कहना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और लाहौर के जो अवाम है उनकी तो ये भी अच्छी बात है कि वो उन्हें कोई भी एक स्पॉट मिलता है तो वो वहाँ पे वो जाते हैं, बाकायदा रश नज़र आता है। आज भी अगर किसी वीक डे में भी अगर चिड़ियाघर में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी लोगों की एक तादाद वहाँ मौजूद होगी। और आप जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के जिस शहर से भी है, अपने शहर के बारे में बताइए कि वहाँ पे विज़िट करने की कौन सी जगह है ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके। और ये भी ज़रूर बताइए कि वहाँ पे खाने पीने की कौन सी ख़ास मशहूर चीज़ है जो कि जब लोग दूसरे शहर से आपके शहर में तशरीफ़ लाएँ तो वो उस वक्त ये चीज़ खाएं और आसानी भी हो और वो एग्जैक्ट जो सही खूबसूरती है उसी तरफ रुख भी करें। ठीक है जी, इश्यूज़ क्या क्या आप कह रहे थे जो टूरिस्ट हैं उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले एक सिक्योरिटी का बड़ा इशू है जो हर आदमी बड़ा कॉन्शियस होता है। किसी को मैं अगर बच्चे को भेजूंगा तो मैं बहुत अलर्ट होगा जी यार, बच्चे सिक्योरिटी का मामला एक सबसे बड़ा जो कोर इशू है उसमें मैं समझता हूँ कि मतलब कोर इशू इस वक्त सिक्योरिटी का। दूसरा इशू वहाँ पे ये है कि आपकी अकोमोडेशन का बड़ा एक प्रॉब्लम्स है उन एरियाज़ में। गवर्नमेंट चाहे तो इसके पास है वहाँ पे तकरीबन आर्ट्स बने हुए हैं, उसको रिफॉर्म करके उनको वेल डेकोरेट करके, ठीक है। और तीसरी ये है कि चेक एंड बैलेंस हो। देखिए ना, चेक एंड बैलेंस होगा तो टूरिस्ट कहीं भी किसी जगह, देखिए जी अच्छी न्यूज़ को शायद फैलने में टाइम लगता है और बैड न्यूज़ हावर्स में और सेकंड्स में फैल जाती है। तो हमारे जो इस चीज़ को स्टेबल नहीं होने देना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, वो जो है वो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं। आप देखिए कई चीज़ें इंडियन चैनल्स ने हाईलाइट की इनको कि मरी का वाक़या मैंने वहाँ पे उसमें देखा कि जी वहाँ अच्छा उन्होंने किया, वो उन्हें तो मौका चाहिए, मगर वहाँ के मुकामी लोगों ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो बिल्कुल पहले तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, बाद में किसी और को हम बात करें। सर एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं इसी हवाले से। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करनी है हमने, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम सियाहत के हवाले से एक नशिस्त रखे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है सरदार जुल्फ़िकार साहब, हमारे साथ हैं फ़राह नाज साहिबा और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी तीसरी मेहमान ने जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और शेफ़ भी हैं। हम इनसे ज़रा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ मज़ेदार लजीज़ खानों के बारे में भी जानेंगे। सबीन फ़ातिमा साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त। आपसे हम ज़रा अभी बात करेंगे इस हवाले से। सरदार साहब से बात हो रही थी वक्फे से पहले फ़राह साहिबा कि इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और एकोमोडेशन के इश्यूज़ हैं और चेक एंड बैलेंस के जो इश्यूज़ हैं इन पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझती हैं कि इन पे किस तरह काम किया जा सकता है या इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो जिन पे काम हो सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए जब कहीं हम जाते हैं ना, सफ़र जब ट्रैवलिंग जब हम करते हैं तो आप किस लिए जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने? एक तो ये कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, चेंज के लिए जा रहे हैं, सुकून के लिए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाकर और आप खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, फिर बोलेंगे अब मैं तो यही सीखूं, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? सही है। अच्छा, इतना हसीन पाकिस्तान, इतना खूबसूरत पाकिस्तान, KPK में निकल जाएं, चित्राल चले जाएं, अब मरी आ जाएं, स्वात आ जाएं, कालाम आ जाएं, इतनी हसीन जगह, अगर यहाँ पर संजीदगी के साथ हुकूमत छोटे छोटे से रिजॉर्ट्स बन जाएं, हुकूमत चाहेगी तो सिक्योरिटी भी हो जाएगी, है ना? ये मैं तो बंदूक लेके नहीं जाऊंगी ना घर से अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप देखें ये पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी वाले मामले कितने बेहतर हुए हैं, ग्रेजुअली चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। देखे ना कितना ज्यादा फ्लुएंटली लोग जाने लगेंगे। वीकेंड पे मुझे लगता है कि शायद इस्लामाबाद से, पिंडी से, लाहौर से लोग निकल जाते हैं मरी जाने के लिए, स्वात जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए। तो अगर और अकोमोडेशन का मतलब है कि छोटी छोटी जगह मिल जाए, कम रेंट वाली,
جس پہ کم رینٹ ہو, اچھا آپ کو کھانا مل جائے, نوٹ یہ کہ لگژری فوڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن بیسک چیزیں اگر آپ کو صحیح مل جائیں اور لوگ 10-15 دن اپنے اچھے گزار سکیں گے, تو اس سے بعد میں کیا ہوگا, اس کو پروموشن ہی ملے گی. آپ گئے تو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے, اپنے فیملیز کو لے کے جائیں گے, پھر لے کے جائیں گے, تو دین یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اس کو میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے. ہم ویسے ہی بہت پیچھے چلے گئے ٹورزم کے حوالے سے, اتنا ہمارا خوبصورت ملک ہے, ایک جگہ رہ کے ہمارے لوگ بھی مجھے لگتا ہے سائیکو ہوتے جا رہے ہیں. سیریسلی ایک خوف ہوتا جا رہا ہے, سیکیورٹی ہے, نکل ہی نہیں پاتے. ہمارے کراچی میں بیچز کتنے خوبصورت ہیں, اسی کو ڈیولپ کر دیں, اسی کو بنا دیں. پتہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, وہ ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں, جو لاکھ کوشش کر لیں انہیں رات کو نیند نہیں آتی نا, ان لوگوں کے لیے حل لکھا ہوا تھا کہ وہ کسی دوا سے بہتر ہے کہ وہ صرف 7 دن کے لیے وہ اپنے جتنے بھی گیجٹس وغیرہ ہیں یہ چھوڑ کے کسی ایسی قدرت مطلب جو فطرت کے قریب جو ہے نا وہاں چلے جائیں, نیچر میں, اور وہاں پہ ان کی زندگی 2-3 دن کے بعد ہی سورج کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی, کیونکہ انسان بھی تو فطرت کا حصہ ہے نا. تو وہ آپ سورج کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلے گی اور سورج جائے گا تو آپ کی آنکھ بند ہوگی, تو اس آپ واپس اپنی اوریجنل روٹین پہ آ سکتے ہیں. تو یہ بہت ایک اچھی ایک تھیراپی بھی ہے. نیچر کتنا بندی ہوئی ہے انسان کے ساتھ. بالکل ایسا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک روبینہ صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر. موسم بہت زبردست ہے, بہت پیارا ہے. اپنے اس وقت تو کراچی کا ہی موسم بہت حسین ہے, مگر سب سے زیادہ جو ہم آپ بات کریں گے نا وہ کشمیر کی بات کریں گے. ہاں بالکل. آپ کشمیر گئی ہیں کبھی؟ کشمیر گئے نہیں, مگر ہیں کشمیر سے وابستہ ہیں, مگر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ جو گئے تھے تو کاکان وغیرہ ہو کر آئے, سب جگہ گھوم کر آئے. تو آپ کو سب سے بڑی تو کیسا لگا آپ کو سارا کچھ, اور کوئی بتائیے, ایکسپیرینس شیئر کیجئے. یہ ہمیں بہت اچھا لگا, اور ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ اور فروغ دیں تاکہ ہر انسان جو ہے نا ان اچھی جگہوں پہ گھوم سکے, ہر جگہ جا سکیں, سیاحت کر سکیں. اور وہاں کے کھانے, اب دیکھیں کھانے کتنے اچھے ہیں وہاں کے. آپ سب سے اچھا کھانا کیا لگا آپ کو نارائن کاغان والی سائڈ پہ؟ سب سے اچھا کھانا جو ہے, بس آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کشمیریوں کا کھانا اور کشمیریوں کے ڈشز وہ سب, اور سب سے اچھا کھانا مجھے اس وقت لگا جو یہ افغانی پلاؤ وغیرہ ہیں, اور اس کے ساتھ مچھلی, کئی مختلف طریقے سے مچھلی پکائی جاتی ہے وہ. اور ویسے بھی میرا کوکنگ سے بہت وابستہ ہوں, میں بہت زیادہ کوکنگ سے وابستہ ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. میں بھی کافی اچھے کھانے, اچھی ڈشز بناتی ہوں. تو یہ بتائیے, کھانوں پہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کراچی آئے اس وقت پاکستان سے, تو وہ کراچی میں انہیں سب سے مزیدار چیز کھانے کو کیا مل سکتی ہے؟ اس وقت کراچی آ کے کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ کراچی میں آ کے کیا کھائیں وہ سوغات؟ اس وقت کراچی میں آ کر کھانا جو ہے سب سے اچھی چیز جو ہے اس وقت مندی یہاں پر بہت اچھی بننے لگی ہے. مندی کھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہاں پر دیکھیں, بریانی نہ کہیے گا, بریانی نہ کہیے گا, بریانی انہیں کھانی پڑنی ہے. بریانی نہ کہہ دیجیے گا, وہ تو کھانی ہی پڑنی ہے انہیں. نہیں, بریانی نہیں, بریانی تو بہت عام سی ہو گئی ہے. بریانی کے علاوہ آپ یخنی پلاؤ لے لیں, بریانی کی جگہ ہم یخنی پلاؤ بناتے ہیں, وہ بہت زبردست بنتا ہے ماشاءاللہ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جب کراچی تشریف لائیں گے تو آ کے یہاں پہ آپ نے نہاری ضرور ٹرائی کرنی ہے, بریانی ضرور ٹرائی کرنی ہے, اور سی فوڈ جو ہے وہ اس کو آپ بالکل مس نہیں کرنا چاہیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں فریش سی فوڈ جو ہے وہ ملتا ہے, اور باربیکیو, اور بھوک لگنا شروع ہوگی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور سیاحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں سردار ذوالفقار صاحب, فرح ناز صاحبہ, اور سبین فاطمہ صاحبہ. سبین صاحبہ, کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ خانہ داری کے ساتھ بھی ہے کافی زیادہ, اور کوکنگ وغیرہ کے حوالے سے, تو یہ بتائیے کہ پاکستان بھر کی وہ کون کون سی مزیدار ڈشز ہیں جو ان علاقوں میں, پاکستان بھر کی, ہاں پاکستان, جو دیکھیں کراچی جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں جہاں پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوتے ہیں, وہاں تو ہر چیز مل ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ ایکچولی وہ خاص کون کون سی ڈشز ہیں جو ان علاقوں میں بنائی جاتی ہیں اور واقعی کھانے سے تعلق رکھتی ہیں؟
जैसे अभी पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कश्मीर में वाइट चावल, लोबिया है और कश्मीरी पुलाव है, उसमें अफगानी ड्राई फ्रूट पुलाव डलते जिसमें ड्राई फ्रूट डाल के वो बनाए जाते हैं वो है। लाहौर साइड पे आ जाए, वहाँ पे पाए का भी जिक्र हो रहा था, पाए जी है। जी पाए है। कराची में तो बिरयानी है, बिरयानी तो टॉप ऑफ द नहारी लिस्ट है। टॉप पे है, कोयटा में चपली कबाब और है। कढ़ाइयाँ अच्छा मैं अभी पेशावर में। लास्ट टाइम गई थी खागन, तो वहाँ पे चपली कबाब मैंने वहाँ पर खुद बनाए थे एक उन पे रेस्टोरेंट में। यकीन नहीं था वो? नहीं, मुझे यकीन तो था, लेकिन उनकी मतलब फरमाइश पे मैंने वहाँ पर अच्छा। चपली कबाब बनाए थे। तो जैसे वहाँ गए तो नारायण पे, एबटाबाद में, बालाकोट में, जी, जी, वहाँ जी। चपली कबाब का रुझान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा ट्राउट फिश है वहाँ की वो एक सौगात। जी, ट्राउट फिश खाने के लिए लोग जाते हैं और ट्राउट फिश के फॉर्म भी बने हुए हैं अब तो वहाँ पे। अच्छा, हर जगह की वजह से हमारा अलग है। फैसलाबाद में अलग ट्रेंड है, गुजरावाला में अलग ट्रेंड है, खाने का प्रेजेंटेशन अलग है, डिशेस वही हैं लेकिन प्रेजेंटेशन उनकी अलग है। केपीके में दुम्बा खाया जाता है। दुम्बा खाया जाता है। कश्मीर में वो सरसों का साग एक आता है अच्छा, और सही है। मकई की रोटी, जबरदस्त। मतलब ये बड़ा एक वहाँ पे, और लस्सी साथ में, जी, बड़ा जी, एक जी, वहाँ जी। पे ये जबरदस्त। शौक से वो लेते हैं। जंग और असली घी गुजरावाला बटर साइड पे डालकर ज़्यादा, उसमें। गुजरावाला गुजरावाला साइड पे ये सरसों का साग और मकई की सरसों रोटी। हमारे यहाँ। गुजरावाला की जो सौगात है वो है चिड़े। आपको पता है वहाँ बहुत ही पे ज्यादा। हाँ वो चिड़े जो हैं वो उन्हें धागे में ऐसे परो के जैसे बटेर हमारे बटेर यहाँ, की बटेर तरह, फॉर्म में। तो वो चर्रे बड़े की शौक फॉर्म से में खाते बनाते हैं वो, हाँ। उसको डिप करके पाए फ्राई। बड़े शौक से खाए जाते हैं वहाँ पे, और लाहौर में पाए बड़े शौक से खाए जाते हैं। टूरिस्ट को वैसे किस किस्म के खाने खाने चाहिए? जैसे आप जाते हैं किसी अलग जगह पे गए हैं आप, वहाँ पे कुछ आप मतलब एक नई जगह है तो वहाँ पे उस वक्त खाना कैसा खाना चाहिए? वहाँ के जो मकामी खाने होते हैं वो पेट भर के खाने चाहिए या सादे खाने खाने चाहिए या ऑर्गेनिक खाने खाने चाहिए ऐसी जगह पे? क्योंकि आप बीमार होने का रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि कुछ दिन की छुट्टी होती है। उसमें मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो आप हल्की ग़िज़ा से इस्तेमाल करें, हल्की ग़िज़ा, हल्के स्पाइस इस्तेमाल करें। आप जैसे हम दुम्बे के गोश्त की बात कर रहे हैं, वो पकने के बाद उनके तो वैसे भी काली मिर्चों में और हरे मसाले में दुम्बे का गोश्त बनाया जाता है, वो नुकसानदेह नहीं है। आप चपली कबाब पे आ जाएं तो चपली कबाब भी कोई, मैं समझती हूँ ऐसे कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर वो अच्छी चीज़ में, अच्छे ऑयल में बन रहा है और अच्छा उसमें मीट इस्तेमाल हो रहा है तो वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन मज़े की बात पता है भाई वहाँ पे क्या है कि आप जिस भी आप जाते हैं ना, जैसे आप यहाँ से आप ट्रैवल करके केपीके में जा रहे हैं, तो जब आप एक दिन वो रुकते हैं तो उस एनवायरनमेंट में आप खुद एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ। यानी हालांकि वो लोग चिकनी चर्बी ज़्यादा फैट जी हाँ, इस्तेमाल होता है, बट आप उसको खा रहे होते हैं और आप डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ खाने का तस्वर भी नहीं कर सकते आप। आपके ऊपर थोड़ा भारी भारी फील होता करते है, हैं। आप कागान या इस तरफ चले जाएं, जितना हैवी खाना खाते हैं आपको 1 घंटे के बाद फिर आपको लगता है कि exactly, भूख लगी है, फिर कुछ खाना खाया जाए। तो सरदार साहब से कश्मीरी खानों का पूछते हैं। कॉलर ले लें पहले एक हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेस मुगलिया से बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं? क्या बात है जनाब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लाहौरी खानों का जिक्र हो रहा था, जरा बताएं ना हमें कौन कौन से लाहौरी खाने हैं? लोर लोरे जिन्हें तो क्या जमिया नहीं। खा लो दही पल्ले खा लो। अच्छा दही पल्ले, अच्छा और बताएं। वो एक गाना चला ना इसके ऊपर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अगे शाला मारे दादा मजारे, बहुत लंबी है हिस्ट्री। अगर मैं इसको गाना शुरू कर दूंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा है। लाहौर की इतनी तारीफ करती हूँ, और माशाल्लाह दूसरे भी शहर हैं लेकिन हम अपने लाहौर में रहते हैं। लोग स्पेशली यहाँ के खानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे चटपटे मसाले और ये वो मौसम भी मुनासिब से। आज 1 वीक हो गया और इतने बेहतरीन मौसम है ना, मैं बता नहीं सकती यहाँ पे। तो इस मौसम में बताएं ना हमें, खाने की सबसे सही चीज कौन सी है? अगर कोई जाए आजकल लाहौर जा रहा है तो वो क्या खाए जाके? ये पाए खाएं, बौंग खाएं, निहारी खाएं। फज्जे के पाए इतने मशहूर हैं यहाँ के लाहौर के। और आप फूड स्ट्रीट जाएं, अगर आप जाना चाहते हैं कहीं पे भी, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पे आपको पता है कि हाँ यहाँ पे है। अगर नहीं जा सकते तो मैंने तो अभी कल रात को मेरे घर माशाल्लाह गेट टुगेदर पार्टी थी, तो मैं, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो उन्होंने फरमाइश की कि हमने पकौड़े खाने और चाय साथ। अच्छा। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने बनाया जी ना, इतना मजा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। अच्छा लाहौर में घूमने के लिए बताएं, अगर किसी को जैसे नहीं सर, लाहौर में मैं कहती हूँ बहुत अच्छे, हमारा पाकिस्तान मुल्क बहुत खूबसूरत है।
हम सोचते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाएं, ये देखें यहाँ, लेकिन हम सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सैर और तफरीह की जगह है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और स्पेशली ये जो मरी कगान नारान, मैं जाती तो हूँ, एक दफा मैं गई हूँ, लेकिन ज्यादा ट्रैवल करती हूँ तो मेरा दिल धड़कता है। मैं कहती नहीं, बहुत दिल तो वैसे भी धड़कता है, दिल धड़केगा तो जिंदा रहेंगे। दिल का धड़कना बड़ा जरूरी है। मैम दिल इसलिए धड़कता है कि उनको ऊपर से मैं जब नीचे देखती हूँ ना, मेरा बहुत दिल तेजी तेजी से धड़कता है। एक धड़कना टक टक और एक टक 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 टक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर जी, कश्मीर के बारे में बताएं आप। सर इस वक्त मैं कहता हूँ कि इस रीजन में मोस्ट ब्यूटीफुल जो एरिया है वो कश्मीर के लाइक बंजोसा हो गया, नीलम वैली हो गई, और बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव एरियाज और प्योर नेचुरली चीज़ें हैं वहाँ पे, जो नेचर है ना, कुदरत का एक। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर को प्रमोट करना चाहिए, ख़ास तौर पे टूरिज़म के हवाले से। बहुत पीसफुल माहौल है। ये जो आप सीज़ फायर लाइन का एक अक्सर मतलब आप न्यूज़ आती हैं कि सीज़ फायर लाइन पे फायर हो रहा है, तो ऐसा मतलब वो एक मखसूस एरिया है जो अदर्स एरिया है लाइक नीलम वैली हो गई, बंजोसा हो गया, तोली पीर हो गई, मतलब डन्ना पोठी मीर खान एक जगह है, मतलब बड़ी खूबसूरत तरीन जगह है। हर छोटे छोटे से बट ब्यूटीफुल। तो कैसे, जैसे फर्ज करें मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, अब बाय रोड पूछे, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि रास्ते के। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस जगह पे जाना है और कौन सी सबसे बेहतरीन जगह है, मुझे रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? सर मैं आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट पे तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है जैसे बंजोसा हो गया, नीलम वैली एक जगह है, नीलम वैली है, वहाँ तो मैंने वो जो दरिया में है ना, नीलम ही है, हाँ जी, वहाँ चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं इन्होंने दरिया के अंदर, आधी चारपाई अंदर है, आप ऐसे टांगे लटकाई हुई हैं, आपने ऊपर बैठ के आप खाना खा रहे हैं, क्या मजेदार। अच्छा, मोस्टली ड्रामास की हमारी शूटिंग हो रही है आजकल। और रावला कोट बड़ी मतलब रावला कोट एक जगह है, मतलब मोस्ट बेहतरीन जगह है। वहाँ पे आप तोली पीर एक इतने मतलब वहाँ पे मतलब एक आप देखें तो बिल्कुल आप आसमान के साथ यूँ लग रहा है कि आसमान भी आपसे नीचे, अच्छा, मतलब है। अच्छा वहाँ पे इसके अलावा बंजोसा है, डन्ना पोठी मीर खान है एक जगह है, वहाँ पे बड़ी अच्छी, तो गाइडलाइन तो खैर एक प्रॉपर आपको मिल जाती है वहाँ की, वहीं से मिल जाती है। अब वहाँ पे खाने का जो मैं कहता हूँ कि सेहत अच्छी होगी तो खाना कोई भी वो बंदा हजम कर लेता है, सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग अब उसमें वहाँ पे ख़ास तौर पे सरसों का साग है, फिर वो मक्खन जो देसी होता है वहीं का एक लोकल मक्खन होता है, क्योंकि आपके वहाँ के इंसानों के साथ साथ जो हमारे जानवर है वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब नेचुरल उनका खाना पीना होता है। पानी का बड़ा आप यकीन करें सर, वहाँ के पानी में इतनी मतलब विटामिन है, तासीर है कि आप एक हफ्ता पिए, मैडम कह रही थी, तो आपको चेंज फील होगा, मतलब एक लगेगा नहीं रियली आपको डिफरेंस फील होता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर को भी फोकस करना चाहिए, और वहाँ का जो हमारी क्योंकि रोडों का इशू है कई एरियाज़ में, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है कि मतलब मैक्सिमम रोड्स को बना रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सिक्योरिटी का इशू बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। मैं आपसे यकीन दिलवाता हूँ कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉरेनर बेस्ड हैं, आप यूके में जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा वहाँ कश्मीर में पता है मोस्टली मुझे लगता है ख़वातीन ज़्यादा हैं और उनके मर्द मोस्टली बाहर हैं उनके। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ किस तरह पहुंच गया पता नहीं चला। बाकी जितने भी हमें पाकिस्तान से बाहर से जो लोग देख रहे हैं, एक तो जो पाकिस्तान से बाहर के जितने भी लोग हैं उनके लिए वीज़ों में काफ़ी नरमी पैदा की गई है, तो अपने साथ जितने भी गोरे हैं उन्हें भी लेके आए, उन्हें बताएं, दिखाएं कि ये पाकिस्तान है, और ख़ुद भी इसी बहाने से आप देखिए पाकिस्तान भर से जितने भी लोग हैं, अगर कोई गैर मुल्की देखें, अगर कोई सियाह देखें, तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि हम पाकिस्तानी और मेहमान नवाज कौम है। हम कम अज़ कम हम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और एक अच्छा वेलकमिंग बिहेवियर जो है ये हमारी तरफ से ज़रूर डिलीवर होना चाहिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।